A very good morning, everyone. I welcome you back in the e-learning program. Today, again, we'll continue with part 2 of the subject SPNCC. Part 2 is secretarial practice, and that will carry 60% of your syllabus, which means 60% एग्जाम में तुम्हारा जो बोर्ड का एग्जाम होगा विल बी फ्रॉम दिस पार्ट 2, that is secretarial practice. Plus this chapter, particularly this chapter, issue of shares, carries almost 11 marks. In that, as I told you before also, that एक MCQ आएगा, एक VSQ आएगा, very short question, then एक 2 mark का question होगा, एक 3 marks का और एक 4 marks का. Alright, so altogether it carries 11 marks of your exam, so we have to be really careful while doing. So as we have discussed, before I start the new topic, I will first give you a quick recap of what we did in the last class. Okay, so in the previous class we have seen that how the company will issue its shares. Okay, what will be the procedure for issuing the shares. So basically you are going to learn 2 procedures here. The first one will be a procedure for share applications and another would be how we allot the shares. पहले applications कैसे हम लेंगे लोगों से. Second will be कि वो जो applications हमको मिल गई उसका हम allotment, उसका distribution हम लोग कैसे करेंगे. Okay, so first one is the procedure of share application that we have started in our previous class. Okay, in that we did 2 points. The first one was opening of a bank account, then second was receiving share applications, then third is classification of share applications, and fourth one is share applications and statement of allotment. In the previous class we have discussed about first and the second point. The first point is opening of a bank account. Alright, so first thing that a company has to do is to open a bank account in any of the scheduled bank, okay, which is being prescribed by SEBI. Okay, and account's name would be escrow bank account, which will be a current account. Okay, current account होगा company का, जिसको हम बोलेंगे escrow bank account. Okay, this account is being open. तो अगर आपको ये account open करवाना है, so what you have to submit in this, a copy of resolution passed in meeting of board of director. Okay, regarding that opening of the bank account, कि हमको बैंक अकाउंट खुलवाना है, उसका कंपनी को एक बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. ओके, और वो रिजोल्यूशन की कॉपी तुमको बैंक में सबमिट करानी रहेगी. ऑलराइट, देन कंपनी तो एस्क्रो बैंक अकाउंट खुलवाएगी, बट व्हाट अबाउट द एप्लीकेंट्स. जैसे मुझे शेयर चाहिए तो आई एम एन एप्लीकेंट, राइट. So what I have to do is I have to open a bank account in any of the bank which allows ASBA. What is ASBA? ASBA is application supported by block amount, which means what, that the amount which I have been applying for. जैसे मुझे 15,000 के शेयर्स हैं, कंपनी का एप्लीकेशन है, तो अगर मुझे वो अमाउंट का क्या करवाना पड़ेगा, मेरे अकाउंट में ब्लॉक करवा देना पड़ेगा, आसबा करवाना पड़ेगा. विच मीन्स कि ना वो अकाउंट के पैसे, वो 15,000 जो भी अमाउंट होगा, कि ना वो मैं यूज़ कर सकती हूँ, ना ही वो कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में भी ट्रांसफ़र नहीं होगा. पर वो क्या होगा कि जब अलॉटमेंट होगा शेयर्स का, तो सपोज मुझे शेयर मिल गए, आई गॉट द शेयर, आई गॉट द अलॉटमेंट, तो फिर वो पैसे जो फ्रीज करे होंगे, दोज 15,000 दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में. और सपोज कि अगर मुझे शेयर्स नहीं लगे तो वो मेरे अकाउंट में फिर से आ जाएंगे. हालांकि वो तुम अगर स्टेटमेंट देखोगे तो अमाउंट तुम्हारा सेम ही रहेगा, बट क्या होगा कि वो 15,000 तुम उसको यूज़ नहीं कर पाओगे कुछ दिनों के लिए. Alright, afterwards it was receiving share applications. So share application रिसीव करनी पड़ेगी. जनरली 3 to 5 days में it should get over.
ओके, सो इन्वेस्टर विल डिपॉजिट द ड्यूली फॉर्म विच जो शेयर एप्लीकेशन का होगा वो सब साइन करा हुआ और सब डिटेल का, पैन कार्ड नंबर, ब्रोकर और ये सारी चीज़ें, ब्रोकिंग नंबर एंड ऑल दीज थिंग्स आर टू बी सबमिटेड. ओके, एंड दिस वे दे विल बी गेटिंग द शेयर एप्लीकेशंस. अभी जैसे तुम्हारे पास शेयर एप्लीकेशंस तो आ गई. द थर्ड पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर एप्लीकेशन. ओके, नाउ हाउ वुड वी क्लासीफाई दीज शेयर एप्लीकेशंस. जो हमको शेयर एप्लीकेशंस मिली है उसको हम क्लासीफाई कैसे करेंगे. फॉर दैट यू नीड टू कम ऑन पेज नंबर 86. ओके, so let's read it. So classification of share application says a statement of share application is prepared after receiving शेयर एप्लीकेशंस. ओके, जैसे अपने को शेयर एप्लीकेशंस मिल जाती है उसके बाद वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग द एप्लीकेशंस अकॉर्डिंगली. कि जैसे कि जो एप्लीकेशंस कई ऐसी भी होगी कि जिसमें पूरी डिटेल्स नहीं होती है, कि किसी का पैन कार्ड नंबर गलत हो जाता है, किसी का नाम सही नहीं लिखा होता है, किसी के कुछ सस्पिशियस सा लगता है डिटेल्स. सो ऐसी एप्लीकेशंस होती है वो फिर रिजेक्ट हो जाती है. क्या लिखा है, एप्लीकेशन विथ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आर रिजेक्टेड. ये कब होता था पता है, अभी ये बहुत कम हो गया है रिजेक्शन वाला, बिकॉज नाउ डेज एवरीथिंग इज ऑनलाइन. कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने में अगर आप कुछ गलत डालोगे इन्फॉर्मेशन तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. पर दिस दे आर टॉकिंग अबाउट व्हेन देयर यूज्ड टू बी अ फिजिकल एप्लीकेशंस. के जब अभी भी होता है हालांकि फिजिकल एप्लीकेशंस, पर ये जो फिजिकल एप्लीकेशन होता है वो फॉर्म फिल करने में कोई चीज़ें मिस हो जाती है, कोई चीज़ें रह जाती है ऐड करनी. सो दीज थिंग्स हैपेंड एंड दैट्स वाई such kind of applications will be rejected. तो कहीं 10% 5% applications तो ऐसे ही reject हो जाती है just because of incomplete information. ओके, तो पहले उनको applications मिली. ओके, सो स्टेटमेंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन उन्होंने प्रिपेयर किया, उसके बाद जो एप्लीकेशंस इनकम्प्लीट है उसको रिजेक्ट किया. ओके, एप्लीकेशंस क्वालिफाइंग फॉर शेयर अलॉटमेंट आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स. अभी जो एप्लीकेशंस उनको मिली है तो उनको इन्वेस्टर्स के बेस के ऊपर उनको सेग्रीफाई करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है. जैसे कि एज पर सेबी गाइडलाइन. देखो, शेयर के रिलेटेड कुछ भी आएगा ना तो सेबी के गाइडलाइंस के बिना कहीं नहीं जा सकता और कुछ भी नहीं कर सकता. दे हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस विच आर बीइंग इशूड बाय सेबी. ऑलराइट, सो एप्लीकेंट किस बेस के ऊपर डिवाइड हो जाएंगे. द फर्स्ट वन विल बी रिटेल इन्वेस्टर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज ऑफ the company if shares are reserved for allotment of employee. As per now see, the first one is retail investors like you and me. ओके, अपने जो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं. जो रिटेल इन्वेस्टर्स का मतलब क्या होता है, दैट रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब वो जो एप्लीकेशन करते हैं ना उनका अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा नहीं होता है. अपने छोटे इन्वेस्टर्स जिसको बोलते हैं कि जिसका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो 2 लाख से कम होता है, दैट इज कॉल्ड रिटेल इन्वेस्टर्स. ओके, देन नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है कि मतलब कोई बैंक या कि वो इंस्टीट्यूशनल वे में रजिस्टर्ड नहीं है पर उनका नेटवर्थ बहुत ज़्यादा हाई रहता है. राइट, कि उनका जो पैसे होते हैं उनके पास, उनकी वर्थ जो है नेटवर्थ वो ज़्यादा है कि बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं तो दे आर कंसिडर्ड इन दैट, बट दे आर नॉट अंडर इंस्टीट्यूशनल फॉर्म कि कोई म्यूचुअल फंड या कोई बैंक या ऐसा कोई नहीं है. देन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक बैंक और म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा. ओके, हु अप्लाई फॉर शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज़, जो शेयर या अदर सिक्योरिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं. ठीक है, सो दीज आर द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. जनरली बैंक्स होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, सो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है तो दे आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. देन एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी इफ शेयर्स आर रिजर्व्ड फॉर अलॉटमेंट टू एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी. के जब कंपनी के ही एम्प्लॉयज़ को हम शेयर इशू करते हैं तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी. ओके, जो कंपनी के ही शेयर मेंबर्स को, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके जनरली ये टाटा इंडस्ट्री डज दिस, दे ऑलवेज कीप सर्टन अमाउंट फॉर देयर इन्वेस्टर्स
ताकि उनके सर्टेन अमाउंट फॉर देयर एम्प्लॉयज़, ताकि उनके एम्प्लॉयज़ का भी ग्रोथ हो, उनकी कंपनी के साथ उनके एम्प्लॉयज़ को भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिले. ऑलराइट. Then, as per SEBI guidelines, it is necessary to reserve 10% of shares issued for retail investors. तो जो retail investors होंगे कि जो IPO के थ्रू हम लोग एप्लीकेशंस लेते हैं, तो वो 10% तो ऐसे अमाउंट उनको रखना पड़ेगा ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स भी ग्रो करें, रिटेल इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा मिले. Okay, generally turn the page number 87 everyone. Generally a company discloses the reservation made for each class of investor for shares to be allotted in its prospectus. Okay, ये जो भी रिजर्वेशन होता है कि मैंने 20% नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए रखे हैं, या मैंने 10% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा है, या फिर मैंने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए इतने परसेंटेज रखा है, प्राइवेट प्लेसमेंट इतना रखा है, एम्प्लॉयज़ के लिए इतना रखा है. तो ये जो भी चीज़ें हैं, राइट, ऑल दीज थिंग्स आर टू बी प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रॉस्पेक्टस. ये सारी चीज़ें जो होंगी वो प्रॉस्पेक्टस में आपको दिखानी पड़ेगी. Okay, you have to show these details in the prospectus itself. Okay, so that prospectus का तो अभी तुम लोग को बहुत अच्छे से पता है, because many of you have presented also in the class that what the prospectus are, and you have seen that they describe the disclosures, कि कहाँ पे कितना इन्वेस्ट उन्होंने किया है, या जो भी डिटेल्स होती है इशू के रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें वो डिस्क्राइब करते हैं. So this is also something that they have to describe. Clear? Now moving ahead. It is share application and statement of share allotment. अभी शेयर एप्लीकेशंस पहले उन्होंने बैंक अकाउंट खुलवा दिया, फिर उन्होंने शेयर एप्लीकेशंस रिसीव कर ली. ओके, फिर क्लासीफाई कर दिया कि कौन सा एप्लीकेंट है, क्या है. उसके बाद अभी शेयर एप्लीकेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट, कि एप्लीकेशन कितनी आई और उसके सामने किसको कितना अलॉट किया जा रहा है. तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आ जाएंगी. ओके, द नंबर ऑफ applications received in each category is compared with number of shares to be allotted in their respective categories. Okay, कि कितनी एप्लीकेशंस मिली है, राइट, कि मैंने जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को 10 लाख की इशू करी है, तो उसके सामने मुझे 10 लाख शेयर्स मैंने इशू करे हैं, तो उसके सामने मुझे एप्लीकेशंस कितनी आई है. मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को इतना इशू किया है, तो उसके सामने मुझे कितनी एप्लीकेशंस आई है. मैंने एम्प्लॉयज़ के लिए इतना अमाउंट रखा था, तो उसके सामने मेरे पास एप्लीकेशन कितनी आई है, राइट. सो दीज आर द थिंग्स विच आर बीइंग कंपेयर्ड, कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इन ईच कैटेगरी इज कंपेयर्ड विद द नंबर ऑफ शेयर टू बी अलॉटेड इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी. कि मुझे एप्लीकेशन इतनी आई है पर मेरे को अलॉट तो उनको इतनी ही करनी है. ठीक है, अगर मैंने 10 लाख के 10% बोले हैं शेयर्स के मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को दूंगी, तो फिर उसके सामने अगर मेरे पास 20% अगर मेरे पास एप्लीकेशन आती है, तो मुझे अलॉट तो 10% ही करनी है. आई कैन नॉट अलॉट बियॉन्ड माई लिमिट्स. ओके, इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इन अ कैटेगरी आर मोर देन द शेयर्स टू बी अलॉटेड, देन प्रपोर्शनेट अमाउंट इज अलॉटमेंट इज डन. तो उनको प्रपोर्शनेटली दे देते हैं. जैसे कोई एक एप्लीकेंट ने 10 एप्लीकेशंस करी है, तो दे विल बी डिसाइडिंग कि चलो हम लोग 50-50 का रेशियो रखते हैं, या हम लोग 30-70 का रेशियो रखते हैं. कि अगर किसी ने 10 एप्लीकेशन अप्लाई करी है, तो वी विल बी गिविंग देम 7, और एल्स वी विल बी डूइंग लाइक 50-50, कि हम लोग उसको अगर 10 अप्लाई करिए तो हम लोग उनको 5 देंगे. तो वो प्रपोर्शनेट एरियाज वो डिसाइड होता है, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी का इन्वॉल्वमेंट होता है. कंपनी सेक्रेटरी सिट्स विद देम. ओके, लीड मैनेजर्स बैठते हैं और स्टॉक एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, वो सारे मीटिंग करते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं. ओके, वो पॉलिसीज, और उनके सामने ही ये सब अलॉटमेंट होता है, बिकॉज दे नीड द ट्रांसपेरेंसी, राइट. So if the number of application received in a category are more than the shares to be allotted, then proportionate allotment is done. ये याद रखना proportionate allotment, because it can be asked in your 1 mark question. Okay, proportionate allotment.
देन अलॉटमेंट इज फाइनलाइज्ड इन कंसल्टेशन विथ, अभी ये अलॉटमेंट किसके सामने फाइनल होगा, ये भी आ सकता है वन लाइन क्वेश्चन में, दैट अलॉटमेंट इज फाइनलाइज्ड इन कंसल्टेशन विथ द कंपनी सेक्रेटरी, सबसे इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है जो कंपनी लॉ को ही मेक श्योर दैट कंपनी के लॉ, सेबी के लॉ सब फॉलो हो. Lead manager is one of the intermediaries to the public issue, and they will be helping out in each of the way, and they are also independent person. Although they are helping, but they are independent person. उनको कंपनी के ग्रो से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट उनका इंटरेस्ट इसके ये जो भी चीज़ें हैं वो सारी लीगली होनी चाहिए. ओके, देन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, जैसे NSE है, BSE है, राइट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो उनका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उनका एक ऑथोराइज्ड पर्सन होगा. दे विल बी कमिंग टू द कंपनी एंड उनके सामने ये सारी अलॉटमेंट की चीज़ें फाइनल होनी चाहिए. उनका कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है, उनके ओपिनियन लेना इज रिक्वायर्ड. ओके, अ स्टेटमेंट ऑफ अलॉटमेंट containing details of the name of application, to whom shares are allotted, the number of shares allotted, demat account number, depository participant ID, etc. is prepared. Okay, so what is being asked? A statement of allotment, उसमें क्या details होनी चाहिए, तो it can be asked in exam that what details must be included in the statement of allotment. तो what details are needed? The name of applicant to whom shares are allotted, कि जिसको शेयर अलॉट हुए तो उसका फुल नेम, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कि उसको कितने शेयर अलॉट किए हैं, 10 शेयर्स है, 20 है, 50 है, 100 है, कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स आर बीइंग अलॉटेड. दे आर नॉट आस्किंग द अमाउंट, दे आर आस्किंग द नंबर ऑफ शेयर्स. देन डीमेट अकाउंट नंबर, के अब जैसे अपने को बैंक में अगर अकाउंट खुलवाना है तो वी नीड अ बैंक अकाउंट, राइट, बैंक अकाउंट होता है हमारा. वैसे ही अगर हमको सिक्योरिटीज लेनी है, शेयर्स लेने हैं, तो हमको क्या चाहिए होता है, डीमेट अकाउंट चाहिए होता है. अभी डीमेट अकाउंट आप कहाँ पे खुलवाओगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बाद आप खुलवाओगे. ओके, तो आपका डीमेट अकाउंट आपको चाहिए, उसका नंबर देना पड़ेगा. देन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ID, डिपॉजिटरी जो आपके पार्टिसिपेंट जिसके पास आप शेयर्स का ये आपका डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हो, उसका भी ID देना पड़ेगा. So all these things are to be kept in statement of allotment. Then depository and depository participants are informed about the shares allotted to respective applicants, and shares allotted are credited to respective demat account of the एप्लीकेंट. तो पहले डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स दोनों को ये चीज़ें इन्फॉर्म करी जाती है कि हाँ आपके ये लोगों को, आपके थ्रू जिनकी एप्लीकेशन आई है उनको ये लोगों को आपका शेयर ये हमने अलॉट किया है, और जैसे ही उनको अलॉट होता है तो वो तुरंत ही डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं. जैसे सपोज मैंने एप्लीकेशन करी, आई हैव अप्लाइड थ्रू वन ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, सपोज से फॉर एन एग्जांपल बंसल अभी यहाँ पे है, राइट, तो मैंने उनके थ्रू एप्लीकेशन किया, मेरा डीमेट अकाउंट उनके डिपॉजिटरी बैंक में है. ओके, तो मैंने उनके थ्रू किया, तो सपोज मैंने रिलायंस के शेयर्स लिए, राइट, तो अभी रिलायंस वाले जैसे ही शेयर अलॉट करेंगे तो वो स्टेटमेंट उनको भेजते हैं, बंसल को भेज देते हैं कि आपके यहाँ से हमारे पास ये एप्लीकेशन आई थी और हमने ये अलॉट की है. वो बंसल वाला फिर मुझे इन्फॉर्म करेगा, प्लस मेरा जो डीमेट अकाउंट होगा उसमें भी वो लोग डायरेक्ट शेयर्स को ट्रांसफर कर देंगे. अभी रिलायंस वाला वॉन्ट बी सेंडिंग द शेयर्स थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, दे विल बी जस्ट इन्फॉर्मिंग टू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, बट डायरेक्टली शेयर अलॉट किसके अकाउंट में होंगे, मेरे अकाउंट में होंगे, मेरे डीमेट अकाउंट में होंगे. The price of shares allotted is transferred from the amount blocked under ASBA to the escrow bank account of the company. So अगर suppose मुझे shares मिल रहे हैं तो वो मेरे अकाउंट जो ASBA अकाउंट था मेरा वो अभी फ्रीज हो गया था, वो अभी रिलीज हो जाएगा, और जो अमाउंट था जो ब्लॉक था वो अभी ट्रांसफर हो जाएगा एस्क्रो बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी के एस्क्रो बैंक अकाउंट में वो चला जाएंगे पैसे. Okay, applicants are informed about the share allotted or not through SMS and email by stock exchange. तो जो applicants होते हैं उनको SMS और उनको email भी भेजा जाता है कि आपको shares मिल गए हैं,
और उनको SMS भी भेज देते हैं ना, सिंपल जो मैसेजेस अपने को आते हैं वो भी भेज देते हैं। ओके, एन ईमेल बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, दोनों ही आपको भेज देते हैं, दोनों के पास आपकी डिटेल्स रजिस्टर्ड होती है। The company also informs about the allotment of shares to registrar of company and SEBI. वो क्या करती है, कंपनी also informs this about the allotment of shares to registrar of company and SEBI, दोनों को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी है कि जहाँ पे कंपनी की बात आती है ना, तो ROC और SEBI तो बीच में टांग अड़ाएंगे ही, क्योंकि उनको कंसर्न है इन्वेस्टर्स से। उनका ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और SEBI बना ही इसीलिए है ताकि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है रिटेल इन्वेस्टर्स है या जो भी लोग कंपनी को पैसे दे रहे हैं, तो उनका कुछ नुकसान होना चाहिए नहीं। The company is required to complete the entire process from receiving share application to allotment of shares and listing of shares on recognized stock exchange within 15 days as per SEBI guidelines। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो within 15 days ये सब हो जाना चाहिए। ओके, सो ऑल दिस अलॉटमेंट एंड एवरीथिंग, अगर 15 दिन से ज़्यादा अगर आप पैसे रखोगे तो इट विल कीप चार्जिंग द इंटरेस्ट because you have not done your work as per the prescribed time period। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एप्लीकेशन ले ली पर आपके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर ही नहीं होंगे, तो ट्रेडिंग कैसे करेंगे लोग। सो दैट्स वाई विद इन 15 days ऑल सच थिंग्स शुड बी डन so that your application continues to work। Alright, so this was about the procedure of share applications। Okay, the first one was opening of a bank account, then receiving share applications, then you have seen the classification of share applications, then you have seen that share application and statement of share allotment। Alright, next one, it is the procedure of share allotment। So what do we mean when we say share allotment? शेयर अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, राइट? तो पहले तो हमको अगर प्रोसीजर पूछते हैं कि राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ शेयर अलॉटमेंट इन योर एग्जाम इफ सपोज इट इज बीइंग आस्क्ड, तो पहली चीज़ तो तुमको क्या करनी है, उसका हेडिंग दे देना है, दैट शेयर अलॉटमेंट। उसका पहले तुम उसको मीनिंग लिखो कि क्या समझते हो व्हेन यू कॉल इट शेयर अलॉटमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। ओके, सो लेट्स रीड इट। सो एलोकेशन ऑफ शेयर इश्यूड अमॉन्ग एप्लीकेशंस रिसीव्ड। Okay, allocation of shares issued among applications received from general public against share offered for subscription and crediting the share allotment to demat account of the respective applicant is called share allotment। ओके, कि पहले एलोकेशन ऑफ शेयर्स मतलब शेयर का सेग्रीगेशन होगा, अलाउड करेंगे। ओके, जो कौन से शेयर्स, जो शेयर्स हमने इशू करे हैं एप्लीकेशंस के लिए। ओके, जिसकी हमको एप्लीकेशन रिसीव हुई है, किससे रिसीव हुई है, जनरल पब्लिक से रिसीव हुई है, राइट, विच अगेंस्ट शेयर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्रेडिटिंग द शेयर्स अलॉटेड, कि कौन से शेयर्स जो उनको ऑफर करे गए थे, हमने सब्सक्राइब करने के लिए हमने उनको इनवाइट किया था प्रोस्पेक्टस इशू करके, राइट, एंड वो शेयर्स डायरेक्टली फिर अगर उनको लग जाते तो हम लोग डायरेक्टली उनके शेयर डीमेट अकाउंट में हम लोग वो शेयर्स को डाल देते हैं। दैट इज कॉल्ड शेयर अलॉटमेंट। बेसिकली उनको अलाउ कर रहे हैं कि येस नाउ यू आर द मेंबर ऑफ द कंपनी। राइट, सो जैसे ही अगर तुमको ये क्वेश्चन आता है टू राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ शेयर अलॉटमेंट, सो यू हैव टू राइट अ बिट मीनिंग। ओके, 2-3 लाइन्स में उसका अच्छे से मीनिंग लिख दो और उसके बाद यू स्टार्ट द प्रोसीजर। नाउ यू विल सी प्रोसीजर में जैसे पहले में एप्लीकेशंस की प्रोसीजर थी ना, तो उसमें तुमको पॉइंट्स दिए गए थे। इस बार तुम पॉइंट्स नहीं लोगे बट रादर दे आर नंबरिंग्स गिवन। ओके, सो डिटेल अगर तुमको ऐसा लगता है कि इन्हीं पॉइंट्स में से तुम खुद से पॉइंट बना सकते हो तो दैट विल बी एक्सेप्टेड। कि उसमें तुमको कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि टेक्स्ट बुक में तो 1-2-3 पॉइंट करके है, राइट, डिटेल मतलब हेडिंग के बिना है और तुमने उसके हेडिंग्स डाले हैं, तो नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग, सो दैट विल बी परफेक्टली फाइन इफ यू आर नॉट if you're not writing in this way. Okay, you can make your own, but make sure that if you're doing so just show me, वो मुझे एक बार WhatsApp कर देना कि मैम that this way we have given the heading, so if there will be any changes required I'll be letting you know, but please make sure that you meet me or you talk to me before you do this.
Okay, so let's move ahead. So the first point says, okay, the procedure of allotment of shares can be classified into following stages, and the first step says that receiving the share application and blocking the application amount in the bank account of the applicant by recognized bank branches for ASBA procedure and submitting the application to syndicate members appointed by company for the public issue. So before I explain this point, there's one word used which is called the syndicate members. Now what is a syndicate members? Okay, तो द सिंडिकेट मेंबर इज समवन के जो मेंबर है कहाँ के, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के, ओके, ऑन विच द शेयर्स आर प्रपोज टू बी लिस्टेड, कि जिस शेयर स्टॉक एक्सचेंज में मेरे शेयर्स इशू होने वाले हैं, सपोज माई शेयर्स आर बीइंग इशूड टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो माई सिंडिकेट मेंबर विल बी अ मेंबर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. अगर बीएससी में मेरे शेयर रजिस्टर हो रहे हैं तो बीएससी का मेंबर जो होगा दैट विल बी माय सिंडिकेट मेंबर. मैं उसमें से किसी सिंडिकेट मेंबर को सिलेक्ट करूंगी. ओके, they are important intermediaries. Syndicate member is someone we call it intermediaries. We know it, हमने last lecture में देखा था कि if you want to issue the shares you need some intermediaries, and syndicate member is one of the intermediaries, okay, which help to issue the shares. ओके, कंपनी अपॉइंट्स देम फॉर पब्लिक इशू ऑफ द शेयर्स. पब्लिक इशू करना होता है तो इसीलिए कंपनी हमेशा एक सिंडिकेट मेंबर, एक नहीं पर काफ़ी सिंडिकेट मेंबर्स को सिलेक्ट करती है. ओके, सो दैट इट कैन इजीली इशू इट्स शेयर्स. सो रिसीविंग द शेयर एप्लीकेशंस, पहले तो शेयर एप्लीकेशंस हम रिसीव करेंगे, एंड ब्लॉकिंग द शेयर एप्लीकेशन अमाउंट इन द बैंक अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट बाय रिकॉग्नाइज्ड बैंक ब्रांच ऑफ एस्बा प्रोसीजर. पहले हम लोग रिसीव करेंगे एप्लीकेशन, अलॉन्ग विद दैट हम लोग उनके अमाउंट ब्लॉक कर देंगे. वी विल ब्लॉक द अमाउंट विच इज कॉल्ड द एस्बा अमाउंट, राइट, के जो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट के कोई भी ब्रांच ऑफ बैंक में इट विल वर्क. दीज डेज ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स अलाउज यू एस्बा, राइट. सो एंड सबमिटिंग द एप्लीकेशन टू सिंडिकेट मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द कंपनी फॉर पब्लिक इशू. और वो सारी जो एप्लीकेशन होती है हम लोग वो सबमिट करा देते हैं सिंडिकेट मेंबर्स को. भाई अभी तुम्हारा काम है, तुम आगे देखो इसको. ओके, ये जो प्रोसीजर होगी ना शेयर अलॉटमेंट की, उसमें सिंडिकेट मेंबर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज अल्टीमेटली उनको ही ये सारी चीजें देखनी होती है. ठीक है. So first point was that we'll block the amount and you'll of any of the branch of bank. Afterwards it is then we will, yes, of course, forward this amount to these applications to the syndicate members. It is syndicate members, एक नहीं है, काफी members, उनका टीम होता है पूरा जो पूरी प्रोसीजर को लुक आउट करते हैं. Okay. Number 2 is uploading details of share applications received, like name of applicants, class of investors, number of shares applied for, bid amount, cut-off price, application number, depository participant ID, demat account number, amount paid, etc. by syndicate members on electronic bidding system of a recognized stock exchange. तो जो recognized stock exchange का member ही होगा of course, इसीलिए ही हमने वो member को ही choose किया है जो स्टॉक एक्सचेंज का ही बंदा है, राइट, क्योंकि उसको सिस्टम का अवेयर होता है और उसी को ही अल्टीमेटली डिटेल्स डालनी होती है. तो वो सारी डिटेल्स अपलोड करेगा विच इज़ इन द ई बीडिंग सिस्टम के जो इलेक्ट्रॉनिकल बीडिंग सिस्टम होता है, राइट, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर टू बी इलेक्ट्रॉनिफाइड, राइट, कि उनको इलेक्ट्रॉनिक वे में उसको ई फाइल्स में उनको सेव करना पड़ता है. तो उसको सारी डिटेल्स अपलोड करनी पड़ेगी जिसकी एप्लीकेशन वो लोग रिसीव कर रहे हैं, कि जैसे कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जैसे मैंने अप्लाई किया तो मेरा वो पूरा नाम उसमें एंटर करेंगे. क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स, कि मैं कौन से क्लास में बिलोंग करती हूँ, इफ आई एम अ रिटेल इन्वेस्टर, इफ आई एम एन employee of the company, if I'm an institutional investor, or whosoever am I, right. तो वो सारी चीज़ें उसमें उनको एंटर करनी पड़ती है कि कौन से क्लास ऑफ इन्वेस्टर है. नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर, मैंने कितने शेयर्स अप्लाई करे हैं.
प्लस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिड अमाउंट, जब कंपनी कभी बार क्या करती है, शेयर की प्राइस फिक्स नहीं रखती है, पर वो एक स्लॉट दे देती है, जैसे 100 to 120 के बीच में ये शेयर्स का भाव है, तो आप अपने हिसाब से बिडिंग करो। ओके आप बोलते हैं ना कि एक सट्टा लगाओ, या यू कैन से प्रिडिक्ट करो, आई वुड से, आई रादर सट्टा, आई वुड से प्रिडिक्ट करो कि क्या अमाउंट हो सकता है, राइट। फिर कट ऑफ प्राइस क्या रुकता है, या कई बार कट ऑफ प्राइस ही दे देती है कंपनी की, नहीं 120 का शेयर है मतलब 120 का ही है, और कई बार ऐसा होता है कि इट्स नॉट फिक्स्ड, तो 100 to 120, तो व्हाट्स एवर अमाउंट इज, सो दे यू हैव टू बिड, तो वो भी उसको डालना पड़ता है कि ये बिडिंग इतना था, फिर फाइनली इतना डिसाइड हुआ, या कट ऑफ पे ही कंपनी ने इशू किया। सो व्हाट्स एवर इट इज, दीज ऑल द थिंग्स आर टू बी अपलोडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। देन एप्लीकेशन नंबर, कि मेरा एप्लीकेशन नंबर क्या है, कि कौन से एप्लीकेशन में मैंने उसको अप्लाई किया। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी, दैट वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियस ऑल्सो। देन डीमेट अकाउंट नंबर, मेरा क्या डीमेट अकाउंट नंबर है, अमाउंट कितना मैंने पे किया। सो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी अपलोडेड बाय syndicate member on electronical bidding system of a recognized stock exchange। उसको पूरे वो स्टॉक एक्सचेंज में उसको रिकोगनाइज करना पड़ेगा, तभी स्टॉक एक्सचेंज में वो ट्रेडिंग कर पाएंगे, राइट। कि अगर उनकी डिटेल्स स्टॉक एक्सचेंज के पास है तो ही they'll allow you to buy and sell the share, no? So that's why it is to be uploaded over there. Number 3 is details of applications received are sent by syndicate members to the registrar to the issue and recognized stock exchanges. So details of applications received, जो भी डिटेल्स उनको एप्लीकेशन रिसीव हुई है, आर सेंट बाय सिंडिकेट मेंबर टू रजिस्ट्रार टू इशू, के रजिस्ट्रार टू इशू के पास ये सारी डिटेल्स अभी जाएंगी। ऑल्सो टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को भी ये सारी डिटेल्स जाएंगी। Number 4 is applications received are classified into different categories of investors, like retail investors, high net worth investors, institutional investors, and employee of the company by registrar to the issue, and a statement containing all the details is prepared. देखो अभी ज़रूरी नहीं है कि सब लोग अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने 10% कंपनी ने ऐसा रखा कि 10% मैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रखता हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे एम्प्लॉयज़ अप्लाई करेंगे, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि नहीं अप्लाई करेंगे। इट मे हैपन कि उन्होंने 10% रखा और उनको एप्लीकेशन ज़्यादा आई, तो उसका भी उनको प्रपोर्शनेट निकाल के देना पड़ेगा कि यार इन्होंने इतना अप्लाई किया है तो मैं सबको तो नहीं शेयर्स दे सकता, तो प्रपोर्शनेटली दे आर अलाउिंग देम टू बाय द शेयर्स। सो हर एक सिर्फ ये रिटेल इन्वेस्टर्स में ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने जितना इशू रखा है उतने ही उससे ज़्यादा आएंगे एप्लीकेशन या कम आएंगे। इट मे हैपन विद अदर इन्वेस्टर्स ऑल्सो, ओके, कि जैसे अलग अलग क्लासेस हमने देखे थे कि राइट, रिटेल इन्वेस्टर्स है, एम्प्लॉयज़ है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, हाई नेटवर्थ वाले इन्वेस्टर्स है, नॉन इंस्टीट्यूशनल, तो वो सब अलग अलग हो सकता है कि दे मे इनवाइट लेस एंड दे मे गेट मोर सब्सक्रिप्शंस, और इट मे हैपन कि उन्होंने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया और उनको कम भी आ सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन, राइट। सो ये सारी चीज़ें फिर रजिस्टर ऑफ इशू एंड दिस स्टेटमेंट सारी प्रिपेयर होती है और उनको भेजनी पड़ती है ROC में, रजिस्टर टू इशू में, सॉरी, ओके। Number 5 is, see whatsoever these points we are learning, because this is a procedure, so सारी चीज़ें पॉइंट वाइज आनी चाहिए, लाइन वाइज आनी चाहिए, ओके। अगर तुमको ऐसे याद नहीं रह रही है जैसे ये पॉइंट में दी है, व्हाट यू कैन डू इज अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और उसका हेडिंग बना दो। तो जैसे ये टेक्स्ट बुक ही है तो उसमें ही बाजू में लिख दो, कि जैसे आई विल शो यू, लाइक जैसे हियर इट इज, आई वुड से, okay, this is the first point. You can simply here you can just write the topic, कि जैसे receiving the share application and blocking the application amount in bank account of applicant by recognized bank branch of as per procedure, and submitting the application to syndicate members appointed by company for the public issue. तो तुम खाली इतना लिख सकते हो, that submit the application to syndicate members. This could be your first point. और else if you don't wish to write that, तो ये खाली इतना भी लिख सकते हो, receiving share application and blocking the
एप्लीकेशन. तो ये सारी चीज़ें यू कैन डू इट, सो दैट तुमको ये पूरा पॉइंट ऐसे अगर ये खाली पॉइंट भी पढ़ोगे कि सबमिटिंग एप्लीकेशन टू सिंडिकेट मेंबर्स, सो यू विल प्रोसेस कि ये मुझे लिखना है, राइट. अपलोडिंग द डिटेल्स, सेकेंड पॉइंट कुड बी अपलोडिंग द डिटेल्स. So these things can be done. Okay. Third में could details of application received are sent by syndicate member to RO registrar to issue. तो details to registrar to issue and recognized stock exchange. तो ऐसे करके तुम अपने points खुद से बना सकते हो. So make sure कि अभी से ही जहाँ जहाँ तुमको जैसे लगता है तो बाजू में ये points लिख दो, point का नाम कि मैं ये heading दूंगा या दूंगी के, so that तुमको learn करने में ये बहुत आसानी हो जाएगी फिर. Number 5 says basis of allotment among applicants from various categories of investors is decided jointly by registrar to issue, lead manager, syndicate members, company secretary and board of directors. ये सारे नाम बहुत अच्छे से याद रखना. ये point पे make a star or whatsoever you wish to make, because this is really important. That you have to tell them that basis of investor जो allotment है कि आप किस बेस पे allot कर रहे हो shares. तो ये सारी चीज़ें जो डिस्कस होगी ना कि ये एप्लीकेंट ने इतना अप्लाई किया तो हम इतना देंगे उसको, तो ये कोई ऐसे ही रैंडमली तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो, राइट. यू नीड टू कंसल्ट, यू नीड टू डिस्कस दिस विथ रजिस्ट्रार टू इशू, लीड मैनेजर्स, सिंडिकेट मेंबर्स, कंपनी सेक्रेटरी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो सबकी प्रेजेंस में ये चीज़ होनी चाहिए. कोई अकेला इसमें इंसान आके कि बोले कि नहीं इस तरीके से अलॉटमेंट होगा, तो नो, इट कैन नॉट बी हैपनिंग. ओके, तो ये आ सकता है एग्जाम में. सो मेक श्योर ये पॉइंट को तो खास अंडरलाइन कर ही देना. Number 6 says that shares are allotted to various applicants on the basis of pre-decided formula of allotment. Okay, shares allot होते हैं वो various application or to the various applicant on the basis of pre-decided formula of allotment. तो वो formula भी कौन decide करेगा? लीड मैनेजर, सिंडिकेट मेंबर्स, कंपनी सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब मिल के ही उसको उसका फॉर्मूला डिसाइड करते हैं कि 30-20 करना है या फिर 50-50 करना है या फिर अल्फाबेटिकली करना है. सो इट्स ऑल डिपेंडिंग. ओके, इट्स नॉट फिक्स्ड. Number 7 is statement of share allotment is prepared by registrar to the issue and sent to recognized stock exchange and depository and SEBI. किसको किसको भेजना पड़ेगा? तो that also you underline, recognized stock exchange, depository and SEBI. कौन भेजेगा? रजिस्ट्रार टू इशू भेजेगा. क्या भेजेगा? स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट. ओके, वो स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट प्रिपेयर करके रजिस्ट्रार ऑफ इशू and sent prepared by registrar to the issue, and they are sent to recognized stock exchanges, they are sent to depository, they are sent to SEBI. So shares this way the allotment is to be done. Number 8 is shares are credited to demat account of the applicant by depository, and applicant are informed regarding share allotted or not through SMS and email by depository and recognized stock exchange that we have discussed before also. कि अगर आपको उनको शेयर्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, अगर शेयर्स मिल जाते हैं तो उनके डीमेट अकाउंट में they will be credited. Okay, shares are credited to demat account of applicants by depository and applicants are informed, और applicants को inform किया जाता है regarding the share allotted or not, कि अगर उनको allot किए हैं तो उनको दे देते कि these many shares are being allotted to you, and if not then we are sorry for we are apologizing for not giving you shares and all such notes. With polite words they send the SMS or they send the email. Okay, by depository के जहाँ पे आपका अकाउंट है, and recognized stock exchange वो भी आपको भेजते हैं. Okay, thereafter lead manager takes the further action to list their shares on recognized stock exchange. उसके बाद जो lead manager होता है वो सारी actions लेता है and for the further listing of the shares into the stock exchange, because within 15 days the listing should be done, otherwise वो भी फिर से भी उनके ऊपर पूरे से एक्शन लेगा.
Alright, so this way the allotment procedure is being done. Make sure कि पहले तुम लोग यहाँ पे I would say कि just try to write these पॉइंट्स यहाँ पे उसके लिख दो, ये थर्ड का इधर, फोर्थ का, सो यू हैव स्पेस टू मेक श्योर दैट यू राइट द पॉइंट कि आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आप कौन से पॉइंट्स लिखोगे. एंड हियर ऑल्सो जो जितनी भी ये पॉइंट्स है 8 पॉइंट्स यू हैड, तो ऑल सच 8 पॉइंट्स आर टू बी रिटन इन लाइन. ओके, लाइन में तुमको लिखना पड़ेगा. सो इट शुडंट बी लाइक के कैसे भी लिख दिया तो चलेगा, पर तुमको लाइन में वो सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, बिकॉज प्रोसीजर है. कभी भी प्रोसीजर आती है तो हमेशा हमेशा याद रखो कि वो तुम उसको लाइन में ही लिखो. ओके, बिकॉज प्रोसीजर में ऐसा नहीं होता कि हमने फर्स्ट पॉइंट किया फिर सेकंड करेंगे तो चलेगा. Okay, so all together by the end of this session we have completed the first procedure, that is application, the procedure for share application. Then after we have seen the procedure of share allotment, we saw the meaning of it, and we also saw the procedure of share applicants. Okay, allotment, sorry. So 8 points of them are to be learnt. Now afterwards some legal restrictions and provisions ऑन शेयर अलॉटमेंट. कुछ सेबी जो होती है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस अलॉटमेंट में करती है कि ये आप ऐसे अलॉट नहीं कर सकते हो. कुछ प्रोविजंस रखती है कि आपको ये चीज़ें तो आपको खास करके फॉलो करनी ही पड़ेगी. ओके, सो ये अलग अलग तरीके की एक उनके लिए प्रोसीजर रखती है, सो दैट किसी भी एप्लीकेंट के साथ इनजस्टिस ना हो. तो वो ध्यान रखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस और कुछ ना कुछ लीगल प्रोविजंस से भी हमेशा प्रिपेयर करती है, सो दैट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट कैन बी प्रोटेक्टेड. Okay, so those legal restrictions and provisions of share allotment, we will be doing it in the next class. So make sure that you completely nicely revise these two procedures. Okay, and then in the next class we'll be starting the new topic. So up till then please do revise all such things, right? कि ये सारी चीज़ें रिवाइज करते रहो, क्योंकि अभी ये देखने में बहुत आसान लगता है, सुनने में स्टोरी जैसे लगता है, राइट, बट व्हेन यू एक्चुअली राइट इट यू ऑलवेज फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. तुमको वर्ड्स फिर मिलते नहीं है पूरे. वाई? बिकॉज वी आर नॉट सो यूज टू ऑफ दीज वर्ड्स. ये सारे वर्ड्स, सिंडिकेट मेंबर्स एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दीज आर समथिंग वर्ड्स इन डे टू डे लाइफ वी डोंट यूज इट मच, राइट. अपने इतना कोई डे टू डे लाइफ में ये वर्ड्स यूज नहीं करते. सो वी फाइंड इट वेरी वियर्ड व्हेन समटाइम वी फाइंड सच वर्ड्स. सिंडिकेट मेंबर क्या होता है, इंटरमीडिएटरीज क्या होते हैं. सो but once you will keep on hearing these words, once you will keep on reading them, and I find many of you doing spelling mistakes of these things, so once you will keep on practicing, you won't find it new. And although this subject is not compulsory, the main subject में include नहीं होता है, but when your percentage will be counted, परसेंटेज जब काउंट होता है ना, तब सारे सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाता है. इवन योर गुजराती सब्जेक्ट इज ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड एज मेन सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू परसेंटेज. तो तुम्हारा जो रिजल्ट में एट द एंड लिखा होगा ना, तो उसमें ऐसा नहीं लिखा होगा कि चलो इको सी और अकाउंट स्टैट्स के मार्क्स लिख दिए. तो ये SPCC के भी मार्क्स तुम्हारे इंक्लूडेड होंगे ही. वी डोंट नो अबाउट द सिचुएशन, हाउ इट विल गो एंड हाउ योर एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड, बट वी आर प्रिपेयरिंग लाइक कि सब ठीक हो जाएगा एंड यू आर अपियरिंग फॉर योर एग्जाम. सो मेक श्योर दैट विदाउट वरिंग जस्ट ट्राई टू गेन द नॉलेज. ये सारे सब्जेक्ट्स को अभी तुम्हारे पर इतना कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं है, बट एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू गेन द नॉलेज. कि चाहे तुमको 12th में भी या 11th में भी मास प्रमोशन मिल जाए, बट उसके सामने तुमको नॉलेज में फेल नहीं होनी चाहिए हो, चाहे मार्क्स वाइज जो भी आए, बट यू शुडंट बी फेल ऑफ योर नॉलेज. सो आई विल बी जस्ट सजेस्टिंग यू to keep reading and keep revising all such things, not for your exam purpose. And this subject is something I told you that this is skill based subject. ये सारी चीज़ें तुम्हारे skills develop करती है, जो अभी सब सीख रहे हो ना 11th 12th का जो भी है. So they are something that you are building your habits, you are building your character, you are building how you will be in your future. Your present decides that how you would be in your future, how would you be presenting yourselves when
यू सी ऑफ प्रेजेंट, यू नो, कि अभी से तुमको अगर यू नो एक हैबिट है सेल्फ डिसिप्लिन की, तो शायद आगे जाके भी तुम वही कंटिन्यू करोगी. तुमको कोई बोलेगा नहीं कि ये करो वो करो, बट यू विल बी डूइंग ऑन योर ओन बिकॉज यू आर सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन, राइट? सो ट्राई टू build such habits where you can be self disciplined and you can do your work on your own without somebody indicating you, yaar ye kar de wo kar de. It's better that you start doing from now. This is the best opportunity, right? You're at your home, so you can create, you can learn, you can explore. जैसे कुछ नहीं भी समझ में आता, you can ask me up, and the most important weapon that you have is your Google, right? You can Google it anything, right? So just make sure that you gain the knowledge rather than you know just making के हाँ ऑनलाइन है, हम तो पास वैसे भी हो जाएंगे, ये होगा वो होगा. तो ऐसे प्रिडिक्शन करने से बेटर है that you start revising. Alright, up till this we are keeping everyone. Thank you so much and have a nice day ahead.